Good morning, students. Now we are going to study the second part of the first lesson for the 9th standard students, the fun they had. हाफ वीडियो पहले हमने कंप्लीट कर दिया था, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कुछ दिए गए थे। बाकी के उसमें आपने देखा था both two guys got a books that was old kinds of books. Their grandfather had studied by the books. Tommy and Margie both are discussing about ancient times schools and books because they are living right now in the future, and they study by the mechanical teachers, robotic teachers, and their school is their own house. In that books there was printed fixed letters. आपने देखा कि किताबों में आपको बताया गया था, मार्गी जैसे कि मार्गी वाज सेइंग it is the printed letters. After completing the books they will throw it anywhere because after reading that is useless. किताबों को पढ़ने के बाद तो लोग फेंक देते होंगे क्योंकि ये तो बेकार हो जाती है। When they started discussing, they got the fun, they got the enjoyment about old kinds of schools. When they hear, उसके बाद हम देखते हैं, लेट्स कैरी ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ्स. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kinds of school. Stupid. As I told you, Margie was asking which kinds of school that was. तो टॉमी उसको बताता है, अरे पागल, ये जो हम जिस तरीके के स्कूल में आज पढ़ रहे हैं ना, वो स्कूल ऐसा नहीं होता था, वो स्कूल ऐसा नहीं होता था. दैट वाज नॉट दीज काइंड्स ऑफ स्कूल. ये स्कूल ऐसा नहीं होता था जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं. This is the old kinds of school that they had hundreds and hundreds of years ago. हजारों सैकड़ों साल पहले इस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे. Because I told you it was the matter of the 17th May 21,057. 22वीं सदी की बात होगी. 22वीं सदी की बात कर रहे हैं ना, इन फ्यूचर की बात, 21,057 की बात, 21,057 की बात कर रहे हैं. तो बोलते हैं कि हजारों सालों पहले ऐसा होता था. He added, loftily pronouncing the words careful, centuries ago. बड़ी धीरे सावधानी से कहता है, शताब्दियों पहले, सेंचुरीज हो गया ऐसा होता था. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे तो नहीं पता है कि उस समय उनके पास किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे. I don't know about it. She read the books over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. फिर वो बोलती, कोई भी बात नहीं, चलो टीचर तो होता था. Sure, they had a teacher.
but it wasn't a regular teacher, it was a man. हाँ, टीचर तो होता था, but that was not a robotic teacher. वो उनका रोबोटिक टीचर नहीं होता था जैसे nowadays we are seeing, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि we are studying through the robotic teachers. उन दिनों ऐसा नहीं होता था. At that time the students were taught by the man. उस समय आदमियों के द्वारा पढ़ाए जाते थे स्टूडेंट्स. A man, how could a man be a teacher? Margie said that how a man can be a teacher. अरे आदमी टीचर कैसे हो सकता है? आदमी टीचर कैसे हो सकता है? तो टॉमी बोल रही है, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. उस समय जो टीचर हुआ करते थे बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या करते थे? होमवर्क देते थे और खुद चेक करते थे. A man isn't smart enough. क्या एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता? A man isn't genius. स्मार्ट, क्या एक आदमी इतना स्मार्ट या जीनियस नहीं हो सकता? जैसा कि आज हम लोग अपने टीचर को मान रहे हैं, मैकेनिकल टीचर को मान रहे हैं. श्योर, व्हाई नॉट? ही कुड, ही मे बी, क्यों नहीं? हो सकता है वो. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. बोलो ना कि जितना टीचर जानता है उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. देखिए ये वर्ड्स आपने जो देखा यहां पर बेचा, ये जैसे बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, शर्त लगा लो, इतना जानते ही हैं. जितना आज का टीचर जानता है उतना मेरे पिता भी जानते हैं, मान लो, शर्त लगा लो. Margie wasn't prepared to dispute that. Dispute means quarrel. Margie wasn't prepared to dispute that. Margie didn't want to discuss too much with Tommy about it. She wanted to know only the old kinds of school. So she wanted to finish it in a hurry, in a quick. वो जल्दी से समाप्त करना चाहती, जितना जल्दी. she was very excited to hear about those kinds of schools. बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी. आपको बताया गया पहले, she hated the school. वो तो घृणा करती थी, नफरत करती थी स्कूलों से. बट जब उसने सुना ना ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल के विषय में, she became very excited. बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाती है. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. So as I told you, no, in future times there will be a mechanical teacher, robotic teacher, and classroom will be their own house. उनके घर के कमरे जो होंगे, आज भी हम देखते हैं घर में बहुत सारे लोग जो हैं उनके अलग अलग डाइनिंग रूम अलग होते हैं, स्टडी रूम अलग होते हैं, बेडरूम अलग होते हैं. तो वैसे ही उस समय उनके पास क्या होगा? स्टडी रूम जो है होंगे इन फ्यूचर. तो मार्गी तो बोलती है कि मैं आई डोंट वांट टू इंटर अ स्ट्रेंज मैन, अ अननोन मैन. किसी अपरिचित व्यक्ति को भाई मैं तो अपने कमरे में नहीं आने देने वाली. तो टॉमी उसको बताता है, टॉमी स्क्रीम्ड, तेजी से बोलता है, स्पीक लाउडली, चीखना, चिल्ला करके बोलता है, विथ अ लाफ्टर, हंसते हुए. यू डोंट नो मच. अरे तुमको पता नहीं है. यू डोंट नो मच, यू डोंट
नो अबाउट दोज काइंड्स ऑफ स्कूल आर द बिल्डिंग्स। तुमको पता नहीं इसलिए ऐसा बोल रही हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। वो जो टीचर होते थे ना, घरों में नहीं रहते थे, घरों में नहीं पढ़ाते थे। यहां पर ऐसा कहने का सेंस है, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड a special building and all the kids went there. At that time there was a special particular buildings where the students were taught, that was known as the school. उस समय स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और बच्चे वहां जाते थे। ऐसा नहीं कि टीचर सबके घर जाता था। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, पर्टिकुलर बिल्डिंग होती थी, उसी बिल्डिंग में सारे स्टूडेंट्स जाते थे और टीचर वहां पर पढ़ाता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, एक क्लास के। आज आप जैसे बैठते हो तो एक क्लास में जितने भी बच्चे बैठते हो, सारे जो भी टीचर आता है एक ही टॉपिक सारे बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है। वहां पर एक क्लासरूम में एक ही बच्चा होगा। स्टडी रूम में भाई आप किसी के घर तो जाते नहीं हो ना पढ़ने के लिए। श्योर इफ दे वेर द सेम एज, हाँ, इफ देयर एज वर सेम, अगर उनकी उम्र एक समान होती थी, दे वेयर taught the same things, same topic by the teacher in a room. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Here Margie's mother, Margie is saying, मार्गी बोल रही कि मेरी मम्मी ने बताया कि अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड। टीचर को अपने आप अपने दिमाग को एकदम फिट करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था। आप ईच बॉयज एंड गर्ल्स इट टीच एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। ये सारे बच्चे अलग अलग पढ़ सके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जिसे द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जिस तरीके से इस प्रकार से वो ऐसी चीज ना कर सके। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। अगर तुमको ये चीजें पता नहीं है तो आप ये किताब मत पढ़ो, छोड़ दो इस किताब को पढ़ना। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। और मैं ये बोल भी नहीं पाई मम्मी से कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेट क्विकली, मार्गी ने तुरंत एट वंस, मार्गी सेट शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, शी वांटेड टू नो अबाउट दोज काइंड्स ऑफ ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल्स। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. As she told she wanted to more about those kinds of school, at once her mother called her because it was her study time. और उस समय क्या होगा, आपके फिक्स आवर, जैसे आज आप बैजू ऐप होता है, इसको आप अगर आप इससे कनेक्टेड होते हो, अटैच्ड होते हो, तो आपसे वो फ्री जो फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम पर आप जैसे ही बोलोगे वो फिक्स टाइम पर आपका कंप्यूटर जो है ऑन हो जाएगा और टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होने वाला है। तो मार्गी की मम्मी ने बुलाया क्योंकि इट वाज हर स्टडी टाइम, या उसके पढ़ने का समय हो गया था और उसके जो कंप्यूटर टीचर थे, रोबोटिक टीचर, वो आने वाले थे। सो हर मदर कॉल्ड हर। मे बी मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मम्मा। मार्गी ने बोला मम्मी अभी नहीं, वेट फॉर सम टाइम्स। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मार्गी
कि मम्मी ने बोला नो, एट वंस कम सून, एंड प्रोबेबली मीन्स मे बी, शायद ये टॉमी के भी पढ़ने का समय हो सकता है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? देन शी रिक्वेस्टेड to Tommy, can we study the books when our school will be over? जब हमारा टाइम खत्म हो जाएगा पढ़ने का तो क्या हम इस बुक को बाद में साथ में पढ़ सकते हैं? तो टॉमी बोलता मे बी, हो सकता है। He said nonchalantly मतलब होता है अनविलिंगली, बिना मन के। बिना मन के जो है वो थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ बोलता है हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वो ऐसा ही कह करके सीटियां बजाते हुए ही वेंट एट हिज हाउस, वो अपने घर की तरफ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक्स टक्ड बीनीथ हिज आर्म, वो जो बुक्स थी जिसको दोनों लोग पढ़ रहे थे उसने अपने क्या किया, ऐसे आर्म में रखा और उसको जो है लेकर के चल दिया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम एंड नाउ एज आई टोल्ड यू इट वाज द स्टडी टाइम ऑफ मार्गी। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड वेयर वाज हर स्कूल, उसका स्कूल कहाँ था? इट वाज जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट बगल में ही था उसका क्लासरूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, एंड अभी मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही टाइम होगा उसका मैकेनिकल मॉनिटर जो है वो लीट अप हो जाता है, जलने लगता है। मतलब उसमें जो है आप जैसे कंप्यूटर चलाते हो तो स्क्रीन पर चीज़ें दिखाई देनी शुरू होती हैं, वैसा ही उसके साथ भी शुरू हो जाता है। एंड इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो संडे और सैटरडे को छोड़ करके, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मी ने बोला बेटा अगर रेगुलर पढ़ोगे, और जाहिर सी बात है आज भी होता है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है अगर रेगुलरली हम करते हैं तो हमारी आदत बनी रहती है। अगर एक दिन हम छोड़ देते हैं तो फिर उस दिन जो है उसी टाइम पर पढ़ने का मन नहीं करता है। तो उसकी मम्मी, हर मदर इज गिविंग एडवाइस टू हर, इफ यू रेगुलरली स्टडी देन देयर विल बी इम्प्रूवमेंट। द स्क्रीन वॉज lit up एंड इट सेड, और जैसे ही स्क्रीन क्लास उसकी स्टार्ट हो जाती है और उसके मैकेनिकल टीचर बताते हैं टुडे इज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। टॉपिक बताया जाता है कि आज का टॉपिक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे अर्थमेटिक में, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और जैसे आजकल हम लोग होमवर्क चेक करते हैं, आपसे मांगते हैं कि प्लीज गिव मी योर होमवर्क, तो उस समय भी कंप्यूटर जो है मांगेगा आपको, एंड यू हैव टू पुट योर होमवर्क इन अ स्लॉट। देयर विल बी गिवन अ स्लॉट, यू हैव टू पुट योर होमवर्क इन अ स्लॉट एंड मैकेनिकल टीचर विल चेक योर होमवर्क। मार्गी डिड सो विथ अ साई। साई मीन्स होता है जैसे आप संतुष्टि के साथ थोड़ा सांस लेते हो, सेम वे दैट इज कॉल्ड द साई। She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy, and she was sitting in her classroom, but she was thinking about old kinds of school, and she was thinking when her grandfather when he was a little boy, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. She was thinking that
all the boys come together, they study together, they take lunch together, and if there is a laughing topic, they laugh together in a school campus. और रियल में भी है, इन फ्यूचर आपको ये आनंद मिलने वाला नहीं है। आज जो आप स्कूलिंग लाइफ में ये जो एंजॉय ले रहे हो, इन फ्यूचर में ये आपको एंजॉय मिलने वाला नहीं है, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स स्टडिंग विद यू। बहुत सारे दोस्त आपके साथ पढ़ने वाले हैं, और उस समय शायद ही कोई किसी के साथ बैठ करके पढ़े। और लोग बताएंगे जब कि हम लोग इतने इतने लोग 70-80 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ करके पढ़ते थे, तो सब लोगों को शौक लगेगा, हाउ इट वॉज पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा सोचेंगे। एंड शी वॉज थिंकिंग सेम थिंग्स। कितना मजा आता होगा उस समय, किसी चीज के लिए सब लोग हंसते होंगे, जब एक साथ लंच लेते होंगे, एक साथ चिल्लाते होंगे, सीटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ एक ही क्लास में बैठते होंगे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्कूल, व्हेन द स्कूल वॉज ओवर। जब स्कूल ओवर हो जाता होगा तो दे वेंट टुगेदर, वो साथ साथ जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स so they could help one another with the homework and talk about it. In ancient time, when their teacher taught the same topics, it means all the students were learning the same topics. If there were arising a questions, if there were a problem in their minds, अगर उनके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होती होगी, if there were doubts in their minds, अगर उनके दिमाग में कोई डाउट्स होते होंगे, फर्स्टली they will discuss to each other. वो क्या करेंगे? एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। पहले वो सीधे टीचर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे लोगों ने क्या किया है, एक ही चीज, एक ही टॉपिक एक साथ पढ़ा है। तो जो उनको लगता होगा कि ही मे बी हेल्प मी, हो सकता है कि ये मेरी मदद कर दे, उसके पास जाते होंगे और वो क्या करता होगा, उसका आंसर बता देता होगा। तो कितना मजा आता होगा। आप लोग क्या करते हो, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपके अपने बगल वाले से पूछ लेते हो, यार इसका मुझसे ये बताओ ना। लेकिन जब आप फ्यूचर में रहोगे, पढ़ोगे, तो किससे पूछोगे? एट दैट टाइम देयर विल बी यू अलोन, उस समय आप अकेले होंगे और आप उस समय हेल्प नहीं ले सकते। ये आनंद आता होगा उस समय। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और खास करके टीचर से भी कुछ एंजॉय मिल जाता होगा। आज जैसे कि आप लोग लेते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं, आप टीचर से शेयर करते हो, तो उसमें सब लोग मिलकर के हंसते हो। अगर उस समय चलो, अगर कोई एक मैन टीचर होगा, आप अकेले पढ़ रहे होंगे, तो भी ऐसा टॉपिक आता होगा, हंस लेते होंगे। लेकिन जब आप मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ेंगे, तो आप क्या शेयर करेंगे उससे? कुछ नहीं शेयर कर सकते ना। तो ये उसकी प्रॉब्लम थी जो वो फील कर रही थी, मार्गी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। As I told you, her classes was going on, but she was thinking the old kinds of schools, old children's, when her grandfather was a boy, and her mechanical teachers. और आज जैसे आप कुछ शरारत करते हो तो हम तुरंत बोल देते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, काम पे ध्यान दो। उस समय मैकेनिकल टीचर आपको बोलने नहीं जाएगा। कुछ लोगों को तो अच्छा लग रहा होगा, चलो कम से कम अच्छा तो है, कोई बोलेगा नहीं। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। Who is a laborious students, he will never think it. वो कभी भी नहीं सोचेगा इसके विषय में।
और आगे चल करके आप देखते होंगे जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस होंगी इन फ्यूचर, ऐसे ही होने वाला है कि वहां पर टीचर आएगा, आज हम जैसे आपके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव भी कर लेते हैं और आपको जो है बताते भी हैं कि बेटा मेहनत से पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो आगे चल कर के आपको प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपको कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है, आप पढ़ो या यू गो टू हेल, देयर इज नो प्रॉब्लम। दे विल ओनली फोकस ऑन देयर वर्क, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, देयर इज नो मैटर। व्हाट आर दे डूइंग, दे ऑलवेज माइंड इट, वो क्या कर रहे होते हैं वो हमेशा इस चीजों पर ध्यान देंगे, आप क्या कर रहे हो उससे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड in the old days. She was thinking about the fun they had, as it was the title of the lesson, the fun they had. ऐसा मजा जो उनके पास होता था, आज वो मजे होते नहीं हैं। तो आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो भी टाइटल दिया जाता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप मूवियां देखते होंगे तो मूवियों में नाम जो दिया जाता है तो पूरी मूवी जो है उसी के नाम के इर्द गिर्द ही रहती है, तो वही नाम रखा जाता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी अनसीन पैराग्राफ्स दिए जाते हैं, आपके जो है बोर्ड एग्जाम में दिए भी जाएंगे, और कभी कभी पूछता है राइट द सुटेबल टाइटल, देयर विल बी गिवन अ पैसेज, और नीचे आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, नीचे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा राइट द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज का सुटेबल टाइटल लिखिए। तो एट द टाइम व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे आप, यू हैव टू फर्स्टली केयरफुली रीड द पैसेज, आफ्टर दैट जो भी उसमें उस पैसेज में जिसके विषय में डिस्कस किया गया है उसी से रिलेटेड कोई नाम आपको रखना पड़ेगा। जैसे आपने देखा यहां पर कि हमने क्या किया, आनंद के विषय में पढ़ा, जब लास्ट में उसको लगा कि उन लोगों के पास कितने आनंद होते होंगे, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा गया, द फन दे हैड। सेम टाइप्स आपको इस तरीके से पैराग्राफ को पढ़ करके आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द आंसर, द सुटेबल टाइटल इज द फन दे हैड, दैट्स ऑल।